So we'll start with revising whatever concepts we have seen in the last class. So first, we have been discussing about place value for like 2 days now. So first, again, I'll just give a little brief. It would take 2 seconds. So place value, as we know, it's the value of each digit in a number. So for example, if you see this particular number 350, in which 50 represents the 10th place, which is the 10th place, and then in this particular number 5006, in this particular number 5 represent thousandth place, right? Apart from that, in the last class we also saw the entire table of Indian and international system of numeration. So if anyone can mention in the chat box, if you remember, like what was the last like kind of numeration value that we have discussed in Indian as well as in international, if you remember. Anyone? Like 10, 100,000, it progresses like that, right? If anyone remembers international numeration system or in Indian, can you mention? Okay, so assuming that, just give me a second. Okay, so just okay. No one, right? Okay. 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 So I'll just mention it. Just give me a second, guys. Okay. Hello. So extremely sorry, guys. Can you mention about what was the last numeration value that we discussed in Indian and international system? Okay. So I'll just say it. In Indian international system, it was Mahashank, and which is like 10 Mahashank, which is equivalent to 10 quintillions, which is an international system, right? Okay. So apart from that, and it's just a comma separator that distinguishes between both the systems. So we'll just move forward with, then we moved forward with units of length with the SI unit, and then we discussed about standard international units and everything, right? So as we know, like standard unit of length is meter, and the longest unit of in metric measurement is basically kilometers, right? Apart from that, we also discussed a very interesting concept of estimates, right? So wherein we saw this particular term approximately, which determines whether we are considering it to be an absolute value, like an exact value of something, or we are just guess कर रहे हैं या फिर we are just assuming it. Okay, so we are just approximately guessing it to be that, or we are just kind of एक make believe kind of एक value हम लोग बना रहे हैं. Okay, apart from that we also discussed about a concept of guesstimate, which is आपका estimate ही करना होता है एक number को या फिर एक value को बहुत ही limited information के साथ, और like वो questions जो होते हैं वो generally हमारे डे टू डे लाइफ या फिर हमारे सराउंडिंग्स को लेके होते हैं, लाइक द डेटाज एंड
related to that. Basically, it could be like how many cars are sold in a month in particular in Kolkata, for example, in Delhi or Allahabad, for example. So these kind of questions, and what is the easiest or what is the right approach to solve these kind of questions, because ये सारे questions हम लोग बस logical और थोड़ा बहुत डेटा पता होंगे तो फिर अच्छे मतलब it would be good अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत डेटा पता है एज एन जो न्यूज़पेपर में आते हैं या फिर इन जनरल भी हम लोगों को दिख जाते हैं कहीं पे, तो ये डेटा भी यूज कर सकते हैं और लॉजिकल थोड़ा रीजनिंग यूज करके वी कैन डू इट वेरी इजीली। और बहुत ही बेसिक न्यूमरेशन यूज मतलब बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस यूज करना पड़ता है विच इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन, ये सारी कुछ ही यूज करना पड़ता है, नथिंग लाइक कैलकुलस वगैरह यहाँ पे नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट पोर्शन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था रोमन नंबर्स पे, और किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि लार्जेस्ट रोमन नंबर क्या होता है, इन विच आई सेड कि लार्जेस्ट रोमन नंबर लाइक कोई भी नंबर को हम लोग रोमन नंबर लाइक कोई भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोमन नंबर से, बट टू बी वेरी प्रिसाइज एक स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक हम लोगों ने बस स्टैंडर्ड फॉर्म्स या फिर जो बेसिक फॉर्म्स होते हैं रोमन नंबर्स के उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था, राइट। तो उस पर अगर हम लोग उस पर फोकस करते हैं लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म्स पे फोकस करते हैं, इन दैट केस द लार्जेस्ट रोमन नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड like largest number basically that can be represented using that standard form is 3999। और अगर हम लोग थोड़ा सा एडवांस फॉर्म्स में जाते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल आपके गूगल में या फिर कहीं पे भी आप जाएंगे, अगर आपको थोड़ा सा और लाइक काइंड ऑफ रोमन नंबर के बारे में रिसर्च करना है तो यू कैन गो एंड यू कैन लुक इनटू विकिपीडिया एंड अदर प्लेसेस, आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, तो वहां पे भी मेंशन्ड है लाइक कोई भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां पे आपका थोड़ा डिफरेंट फॉर्म्स लगते हैं लाइक देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स लाइक आपके रोमन नंबर्स के अंदर ही बहुत सारे सिस्टम्स हैं लार्ज नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वन ऑफ देम इज आपका विनिकुलम करके एक है जहाँ पे आपका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर एक बार आ जाता है, लाइक कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर आपका बस एक छोटा सा डैश आ जाता है, और एक है एपोस्ट्रोफिस, वहां पे आपका थोड़ा सा सी लाइक थोड़ा सा ऑल्टरनेट वेज में हम लोग नंबर्स लिखते हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर व्हिच इज नॉट रियली नेसेसरी, जब आप लोग थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे तो वहां पे नेसेसरी होंगे, पर ऐसे नॉर्मल लाइक डे टू डे लाइफ न्यूमेरिक्स में ये सारे यूज नहीं होते जनरली। अब बट आप if you are curious about it you can go through it and if you want me to share something I'll do it, okay। so all of these were basically recap जो कि हम लोगों ने लास्ट डे और उसके पहले भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस करा था, okay। from today we'll start with the second chapter which is basically whole numbers। तो हम लोगों को whole numbers तो पता ही है कि like a lot of us know whole numbers। तो होल नंबर्स तो आप नेचुरल नंबर्स ही उसके साथ आप जीरो को कंसीडर कर लीजिए, मतलब नेचुरल नंबर्स जो कि अलोंग विद जीरो होता है विच इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर स्टार्ट्स विद जीरो अंटिल इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वहां पे लाइक होल नंबर्स पे आपके काफी सारे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं और वन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी, जहां पे एक होल नंबर इज सेड टू बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर आप कोई जो एग्जाम्पल्स है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल 6 + 4 इट्स 4, राइट। अगर आप हम लोग इसको ऑल्टरनेट कर देते 2 + 6 कर देते तो सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, इट्स ओके। So starting again with closure property, so यहाँ पे क्या होता है आपका फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 होल नंबर्स, राइट, इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में हो गया
तो यहाँ पे टू होल नंबर्स, अगर हम लोग कोई भी ऑर्डर पे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को एक होल नंबर ही मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन, बिकॉज वहाँ पे इट्स पॉसिबल कि अगर हम लोग 8 - 7 कर रहे हैं तो वी विल गेट अ होल नंबर विच इज 1. बट इफ वी आर डूइंग इट इन ऑल्टरनेट वेज, अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं दोनों का, लाइक अगर 7 - 8 हो जा रहा है, तो इन दैट केस इट वुड बी a negative valuation, right? So that's the reason why in closure property it is said that a whole number are closed under addition and under multiplication only. Okay. Other than that, there is there any question regarding this? Okay. Okay. So you can see the examples that are already mentioned, like 6 + 2. Then आपका, which is अगर ये वाला example हम लोग consider कर रहे हैं, so in that case it would be definitely, it would be different. माइनस और डिवीजन पे भी डिफरेंट होता है, राइट? सो अगर हम लोग जा रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पे, इट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पे क्या होता है, अगर एक लाइक कोई भी एक कंडीशन को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहां पे हम लोग टू ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज ले रहे हैं और वी आर कनेक्टिंग इट विद एन ऑपरेटर, तो हम लोगों को सेम ही रिजल्ट मिलेंगे in whatever quantities, in whatever orders we are kind of exchanging or we are operating that quantity. To simplify it, अगर आप ये example देख पा रहे हो, which is a multiplied with b, अगर which is absolutely equal to b multiplied with a as well, which is a commutative property. Okay. So as I said, like subtraction is not a commutative property for whole number, because अगर हम लोग order change कर रहे हैं, उन लोगों का place change कर रहे हैं, तो in that case the answers will differ. Negative valuation आ सकता है और different values will basically come. Okay. So apart from that, any question till now, like in commutative property or closure property? Okay, no questions. So moving forward with distributive of multiplication over addition. तो all of us know multiplication क्या होता है और addition क्या होता है. Distributive. Can anyone tell me what's the meaning of, what do you understand by the term distribution first to begin with? Like distribution का मतलब आप लोगों को क्या पता है, या फिर आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है distribution का मतलब? कोई ये अगर बता सकते हैं? Allotment of anything in some ratio, right? Jigyasa ma'am, right? Absolutely. Anybody else? Anyone else? तो मैम ने यहाँ पे बताया कि allotment of anything, written simple. Okay. Vipendra, sir, can you please elaborate bit and simple? Can you please elaborate on that? Bit and simple. Okay. Oh, so yes. So basically, Jigyasa ma'am is right, and as well as giving or transporting something to a number. Or okay. Yes. All of these things are right. Absolutely. कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट को किसी भी रेशियो पे 1:1, 2:1 रेशियो प्रपोर्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरीके से पता होगा. नॉट मूविंग विथ रेशियो, रेशियो हम लोगों को जानने की अभी जरूरत नहीं है, बट इट्स बेसिकली अलॉटमेंट. कोई भी एक अमाउंट, कोई भी एक वैल्यू को हम लोग किसी लाइक दो या फिर उससे ज्यादा पर्सन पे या फिर प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बेसिकली अलॉट कर दे, वी आर गिविंग इट अवे.
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे क्या होता है यहाँ पे, if we use a multiply if we kind of basically if when we multiply a value by a sum of two or more values, basically एक particular मल्टीप्लीकेशन को हम लोग बेसिकली एक मल्टीप्लीकेशन को हम लोग एडिशन के ओवर कर रहे हैं. ओके, टू इलेबोरेट ऑन दैट आई वुड गिव एन एग्जांपल जहाँ पे यू कैन सी दिस एग्जांपल ओनली. 5 यहाँ पे बाहर है, ब्रैकेट के बाहर, और 5 + 9 है. ओके, तो 5 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द ब्रैकेट के अंदर जो मल्टी एडिशन है, वहां पे हम लोग बाहर के जो 5 है वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग, वी विल बी अलॉटिंग इट टू फर्स्ट वाले ये वाले 5 पे भी, ये वाले 5 पे भी पहला 5 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये वाले दिस 9 विल आल्सो गेट बाहर का 5. बेसिकली विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग, वी विल बी मल्टीप्लाइंग 5 into 5 प्लस 5 into 9. ओके, तो सिमिलर वे में बहुत सारे एग्जांपल्स आप ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं जहाँ पे n एक वेरिएबल है, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल कोई भी एक अल्फाबेट, कोई भी एक लाइक वैल्यू को हम लोग पकड़ लेते हैं, कोई भी एक लाइक बेसिकली एक अल्फाबेट को पकड़ लेते हैं, वहां पे वी कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. उसको रिप्लेस भी करा जा सकता है एंड वी कैन डू एनीथिंग विद इट. ओके, तो n वैसे ही एक वेरिएबल है, और तो m + 10, m कैन बी एनीथिंग हियर. वहां पे भी हम लोग ये 4 को वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद m, and 10 also is getting the same 4 thing. Okay, तो बेसिकली वही हो रहा है क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक लाइक एक बाहर के जो मल्टीप्लिकेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अंदर के जो भी एडिशन और ये सारे न्यूमरेशन है. ओके, so considering this particular property, can anyone say like this ये वाले क्वेश्चन के लिए which will be the correct answer? Like this is option A, option B, option C. Which will be the correct answer? आपको क्या लगता है? B. Okay. Anyone else? Okay. Yes. So 3 of you answered B. Yes. So considering that, yeah, it's very easy actually. Right. It is. So यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि A is getting distributed to B and C as well. तो सिमिलर वे में अगर हम लोग एक थोड़ा सा और इजियर वे में हम लोग डे टू डे लाइफ के एक एग्जांपल ले रहे, फॉर एग्जांपल स्कूल में जो कैंटीन होते हैं वहां पे इफ वी सी कि 20 रुपीज इज फॉर लंच एंड 4 फॉर मिल्क हर दिन के लिए लग रहा है. ओके, सो हाउ मच लाइक कितना लगेगा अगर हम लोग 5 दिन सेम चीज लाइक काइंड ऑफ वी आर ऑर्डरिंग, वी आर यूजिंग सेम अमाउंट. ओके, तो कितना लगेगा अगर if anyone can solve it and put that answer in the chat box itself. 120. Anyone else? Okay, Sejal, आपने 20 प्लस हो. Okay, no problem. I'll just explain as well. Okay. Okay. All of you are right. So it's quite simple and it's very easy as well. So सभी का आंसर सही है 120. Okay? And here's a small kind of elaborate solution for it. अगर जिनको समझ नहीं आया, you can go through it and you can write yes or no if you others have understood as well. जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है प्लीज आप लोग लिख दीजिए yes or no if you have understood the solution. Okay, okay.
तो बेसिकली यहाँ पे इफ यू कंसिडर कि टोटल एक वो पर डे के हिसाब से हम लोगों को फाइंड करना है, तो वी विल बी काइंड ऑफ देन मल्टीप्लाइंग इट बाय 5. तो इट्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी अभी पढ़ा है. तो इट्स एब्सोल्युटली लाइक दैट, एंड देयर इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इट, बट जस्ट बिकॉज वी आर काइंड ऑफ मेंशनिंग दिस प्रॉपर्टी हियर, तो यहाँ पे यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. ओके, देयर इज अदर वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. तो आंसर सेम ही आता है, बट देन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यूज करें तो ये चीज कैलकुलेशन इजी हो जाता है. 2 स्टेप कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे, आप अगर देख रहे हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट बचपन में हम लोग काफी टाइम 3 डिजिट 4 डिजिट लाइक मल्टीप्लीकेशन करते थे. वो वाले एग्जाम्पल अगर हम लोग ले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग 6 के साथ पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, राइट. देन 3 के साथ करते थे एंड देन 1 के साथ करते थे, राइट. तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताया गया है, अगर 6 को 425 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा. ओके, तो सिमिलर वे में ये भी एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते थे बचपन में. वी डिड नॉट नो पर्टिकुलरली कि क्या है, मतलब whether it is a distributive property or not, प्रॉपर्टी का नाम नहीं पता था, पर it was the same logic that we used to use. वहां पे भी 445 was distributed among each and every place value को अगर हम लोग कंसिडर कर ले, ईच एंड एवरी जो हम लोग और एक नंबर हो रहा है हमारे मल्टीप्लीकेशन में, ये वाला 136. तो 136 के हर एक प्लेस वैल्यू के साथ हम लोग उसको प्लस करके फिर उसके बाद हम लोग 425 को हर एक नंबर के साथ हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, this is what is happening. And then I think a lot of us also know about metrics. Like एक पर्टिकुलर एक मैथ्स का ही एक पार्ट आ जाता है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन, जहाँ पे हम लोग जहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर स्क्वायर फॉर्मेशन करके वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि रोज एंड कॉलम्स कितना है. ओके, दैट विल बी टॉट टू यू एज वेल फॉर फर्दर क्लासेस. बट पहले ये उस पे भी हम लोग एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. हाउ, इफ यू सी कि एक पर्टिकुलर लाइक नंबर ऑफ स्क्वायर्स हम लोग अगर देखना चाह रहे हैं कि is it कि 6 into 5 or the number of squares in 6 into 3 कितना होगा. Okay, so if we see it like that, then in all how many squares are there in both the pieces. अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ये दोनों पीस में, you can see this 6 into 5 और ये है 6 into 3. In both these 3 pieces कितना कितना स्क्वायर्स हम लोग उसको पुट इन कर सकते हैं उसके अंदर. okay? तो उस पे भी हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इट वुड बी वेरी इजी. It would be very easy. Anyone wants to add anything or want me to explain anything else? Like ये वाला पोर्शन समझ में आया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का? बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है और कुछ नहीं, जो कि मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो ये बहुत ही लाइक दिस कॉन्सेप्ट माइट सीम टू बी वेरी बहुत बच्चों का कॉन्सेप्ट एंड इट माइट सीम वेरी वेरी इजी, बट ये पैटर्न्स काफी लाइक पैटर्न्स हाई लेवल पे भी हम लोगों को काफी टाइम पे पैटर्न्स पे काम करना पड़ता है. पैटर्न्स यूज होता है इंजीनियरिंग में भी काफी लाइक काफी सारे कोडिंग पे भी आपका यूज हो जाता है पैटर्न फॉर्मेशंस एंड एवरीथिंग. तो ये सारा स्टार्ट हो जाता है हमारे नंबर्स के साथ. तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो वी विल डिस्कस इन फ्यू लाइक 1 or 2 minutes. ये पैटर्न बहुत इजी है. ओके, तो पैटर्न में क्या होता है, पैटर्न इन होल नंबर. ठीक है, तो अगर हम लोग एक कंसिडर करें कोई भी नंबर 1 2 3, राइट, तो उसको हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे सकते हैं. ओके, इफ यू कंसिडरिंग 1 का कोई एज सच पैटर्न नहीं बन सकता. ओके, बट 2 का बन सकता है. 2 कैन बी कंसिडर्ड एज अ लाइन. लाइक
दो पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो तो लाइन बन जाएगा, राइट। सिमिलर वे में अगर जितना हम लोग प्रोग्रेस करेंगे नंबर के साथ उतना ही हम लोग उसको डॉट के फॉर्मेशन में लाके, लाइक वन डॉट विल बी वन वैल्यू ऑफ अ, लाइक एक वैल्यूएशन है एक नंबर का। फॉर एग्जाम्पल वन डॉट इज वन, टू डॉट इज टू, थ्री डॉट इज थ्री, एंड दिस इज हाउ इट विल मूव, ओके। तो यहाँ पे वन का जैसे मैंने बताया कि वन का कोई भी एज सच स्ट्रक्चर नहीं हम लोग इतना दे सकते हैं, तो उसके साथ साथ ही टू को हम लोग लाइन बना सकते हैं, थ्री को हम लोग एक ट्राइंगल के फॉर्मेशन में ला सकते हैं, फोर को हम लोग एक स्क्वायर के फॉर्मेशन में ला सकते हैं, ओके। तो दिस इज हाउ इट मूव्स, ओके। तो यहाँ पे कुछ एक लाइक कुछ आप रूल्स भी बोल सकते हो, कुछ चीजें हैं जो कि हम लोगों को पता होगा, तो इट वुड बी लाइक इट वुड बी गुड। फर्स्ट इज कि एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन। ये जो नंबर्स हम लोग देख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी मतलब इंफिनिटी तक जो भी नंबर हम लोग कंसिडर कर ले, हर किसी को हम लोग एक लाइन के फॉर्मेशन पे ला सकते हैं। एंड एवरी नंबर which is can be arranged in a line, and some numbers like 4 and 9 can also be arranged in a square, okay. um, then some numbers can be arranged in triangles, which is what I mentioned. So यहाँ पे if it, since we all are quite intelligent, I believe, so आप लोग लाइक थोड़ा सा ये टेबल ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि विच, लाइक सिंस ये तो सारा होगा, लाइक 6 will be a line, 7 will can also be a line, 8 can also be a line, 9 can also be a line. कैन यू टेल मी कि कौन कौन से नंबर रेक्टेंगल फॉर्म कर सकता है, कौन स्क्वायर फॉर्म कर सकता है? कैन 6 बी अ रेक्टेंगल? 6 को हम लोग रेक्टेंगल के फॉर्मेशन पे ला सकते हैं? Just type yes or no. That would be great. Can 6 be a rectangle? So you can see, if you can see this particular